A very good evening to all the members present here and to my fellow teachers and dear aspirants. I hope you can listen to me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So Good evening, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग. तो आज हम लोगों की जो ये क्लास है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ क्लास, दिस इज़ सिंपली एन इंट्रोडक्शन where we are going to let you know that how can we help you crack the UPHESC examination which is supposed to be held in next few months. The advertisement for the same has already come, and as we all know that in 2024 we have general elections, so most likely this vacancy will be cleared uh, much before that, maybe by the mid of 2023. So in next 8 to 10 months it may be cleared, or if we include interview as well, so maybe 12 months also, right? So it is a very proud thing to say for me that last time we had run this course successfully, and there were around 30 students in our crash course program. Out of those 30, 13 have been selected and 5 are in waiting. So our result has been very good. It is around somewhere around 40 to 50%, and we had also conducted mock interviews, and the mock interviews are available on our YouTube channel. Some of them are private, we will make them public very soon, maybe tomorrow, and then you can watch those interview, and you can find the interviews of the selected candidates as well as candidates who were not selected, so you can see all those things. Today our agenda is twofold. One, we will talk about the English Adda and how we are going to help you, what are the things that we can offer, the fee structure, etc. And the second part will be focusing entirely on the UP higher education examination, its syllabus, and the method to crack it. Okay, so let me begin by sharing my screen with you and inform you about the English Adda, if you allow me. May I? Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो हम बात करते हैं दी इंग्लिश अड्डा की. इंग्लिश अड्डा की शुरुआत जो हुई थी वो आज से लगभग 2 साल पहले हुई थी. 2 साल से भी कम समय होगा, और हमने तब से काफ़ी जर्नी तय की है और काफ़ी बच्चों को हमने सहायता किया है. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर बाकी लोगों की तुलना में काफ़ी कम रहा है. हम these are some members who have been associated with us in these 2 years, and some of them are associated with us even today. Some of them, some new members have been added, right? So we have here the list of some names. The first one is Dr. Siddharth Misra, who is DPhil from the University of Allahabad. He is UGC NET twice. Then Dr. Syamji Dubey, he is PhD from English and Foreign Language University, Hyderabad, UGC NET in Literature as well as in Linguistics. Dr. J.K. Tiwari, DPhil from University of Allahabad, UGC NET. And Dr. Nidhi Singh, he is also DPhil from the University of Allahabad. And then we have Dr. Nidhi Singh here. Then Dr. Abhishek Dev, he is PhD from Banaras Hindu University. Miss Manju Bhartola, who has qualified UGC NET. Dr. R.P. Dubey, he is DPhil from the University of Allahabad. That is myself, UGC NET. Then we have some faculty for general knowledge, general studies. The first one is Dr. Nidhi Dubey, who is PhD from the University of Allahabad in economics, and she has qualified UGC NET 4 times. And we have Dr. Abhishek Kumar Jaiswal,
who is PhD from Lucknow University and qualified UGC NET. So these are some of our members. We have other members as well, but these are some of our members. Now अभी तक हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट की है उसका एक क्विक समरी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमने शुरुआत जो की थी वो टेस्ट सीरीज से ही किया था। तो हमने यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट किया था सबसे पहले, और टीजीटी की सीरीज़ में से हमारे कम से कम 55 क्वेश्चंस आए थे उस एग्ज़ाम में, लास्ट वाले एग्ज़ाम में। और पोस्ट ग्रेजुएट की सीरीज़ हमने पीजीटी का किया था, 47 क्वेश्चंस के लगभग पूछे गए थे हमारे एग्ज़ाम में। जीआईसी लेक्चरर में 35 क्वेश्चंस, और यूपी हायर एजुकेशन का जो हमारा पेपर हुआ था उसकी सीरीज़ से ही 28 क्वेश्चंस आए थे। लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा हमने DSSB का टीजीटी का किया था टेस्ट सीरीज़, जूनियर एडेट का किया था, और इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमारी सीरीज़ से आए थे। ऑल्दो मैंने काउंट नहीं किया इसलिए मैं आपको काउंटिंग नहीं बता पाऊँगा इसकी। सिलेक्शंस की बात कर लें तो हायर एजुकेशन में जैसे मैंने आपको बताया 13 सिलेक्शंस हैं, 5 वेटिंग में हैं, जिनका डिटेल आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल सकता है, या एडवर्टीज़मेंट्स में, या अभी इंग्लिश अड्डा की हम बुक वगैरह पब्लिश करने की सोच रहे हैं तो उसमें उनके फ़ोटोग्राफ्स और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जीआईसी लेक्चरर में हमारे 4 सिलेक्शंस हुए थे, यूपी पीजीटी में 5 हुए थे और लास्ट ईयर, और यूपी टीजीटी में 16 सिलेक्शंस हैं। ये हमारे सिलेक्शंस हैं जो आपकी टेस्ट सीरीज़ एज वेल एज मॉक इंटरव्यू या फिर क्रैश कोर्स से पढ़े हुए बच्चे हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको एक से ज़्यादा सिलेक्शन हुआ, जैसे श्रवण कुमार एक हैं हमारे स्टूडेंट जिनका जीआईसी में भी हुआ है, यूपी टीजीटी में भी हुआ, यूपी पीजीटी में भी हुआ है, 2 जगह हुआ है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनका जीआईसी में भी हुआ है और हायर में भी हुआ है, तो एक से ज़्यादा जगह क्वालिफाई किया उन्होंने। अब हम बात कर रहे हैं करेंटली हमारे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। तो फ़िलहाल हम यूपी हायर एजुकेशन का कोर्स शुरू करने वाले हैं, और उसके बारे में डिटेल अभी आपको मैं बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता देता हूं। इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 10,000 रुपीज़ है, 999। अगर आप फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट 20, तो आपको 2,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलेगी, आपकी फ़ीस 8,000 रुपये होगी। और अगर आपने पिछले बैच में एडमिशन लिया था और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट है। आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ 5,000 रुपीज़ देना है और आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स ऑल 10 यूनिट्स प्रोवाइड की जाएंगी। यूपी टीजीटी का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये शुरू होने वाला है कोर्स, इसकी फ़ीस 3,000 रुपये है, मात्र पूरे कोर्स की 3,000 रुपये फ़ीस है। इसमें अगर आप फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 2,500 रुपये देने पड़ेंगे। सेम है यूपी पीजीटी का, अगर आप 500 रुपये का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में आपको एडमिशन लेना है। ये हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है। और फ़िलहाल ये इंग्लिश अड्डा के बारे में इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बताया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम, क्योंकि ये जो क्लास है बेसिकली ये हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए रखी गई है, तो आप हायर एजुकेशन से संबंधित जो भी मतलब आगे बात है वो हम करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं इंग्लिश अड्डा के बारे में। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? What will be classes timing? Okay, good question. Class times will be either in the evening or in the morning, because most of our students are working somewhere, so they cannot attend classes during the daytime. So they prefer classes of the evening. So it will be something around 8:30 p.m. in the evening, or 8:30 a.m. in the morning, so that it is not clashing with the work time. And if you cannot attend some of the classes, the recording will be available. You can watch it anytime, and the phone number of the teachers will be available with you. You can send them WhatsApp messages asking your questions, and they will help you on WhatsApp, or during the next class whenever doubt sessions are organized, you can join them. Okay, Sir, will you both papers, first and second paper? sorry, please come again.
both paper, I mean, the 20, I think 20 or 30 questions will be there. Currently of we are current affairs. yeah, no, currently this course that we are talking about, this is about not current affairs, this is about English exam only. English 70 questions. For current affairs, that will be part of our test series. As I have told you, we are also starting the test series, and test series will begin in next 5 to 10 days. The fee for the test series is rupees 1500 for 15 papers, and those papers will include all the most possible questions, the latest questions. That is, all the questions are new. No, they are not repeated questions, number one. And these are the questions that our scholars, our professors think most likely are going to be asked. So this will include 70 questions of literature as well as 30 questions of GS. However, the examination that we are talking about, the course that we are talking about, this course will have only literature, not GS. We will organize some free classes of GS by our experts, right? And those classes will be free like we did last time. पिछली बार हम लोगों ने अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स और टीचर्स के द्वारा स्पेशल क्लासेस अरेंज करवाई थी जीएस के बारे में, जिसका फ़ायदा हमारे बच्चों को मिला था. वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, उनका कोई चार्ज नहीं था. Okay, so now I will request my colleague संतोष सर. संतोष सर जो है वो आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और इस सिलेबस को कैसे स्टडी किया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया, हो सकता है आज हमारे कोर्स को ज्वाइन ना करें. उसकी कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप सक्सेस होते हैं तो वो हमारी सक्सेस है. किसी भी तरीके से आपकी मर्जी है, आप कोर्स ज्वाइन करें या ना करें या फिर कहीं और ज्वाइन करें. Santosh sir, will you please discuss about the syllabus? Yes. Good evening, everyone. Actually, रवि जी ने काफी कुछ बताया है. सिलेबस काफी लेंथी है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि how you are going to tackle it. That is the most important thing. फॉर दैट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले सिलेबस के जो पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए कि आपने प्रीवियसली क्या क्या कहाँ ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक क्या कहाँ पढ़ा है. ठीक है, अगर आपके पास ये एक बैकग्राउंड नॉलेज हो जाएगा तो दैट विल हेल्प यू अलॉट. एंड रिपीट इफ यू हैव सम नोट्स, if you have some, you can say, background understanding regarding the syllabus, then first of all cover that thing. उससे कहीं से भी, अगर आपने कहीं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ भी पढ़ा है तो उसको कवर करिए. ये एक लेंदी सिलेबस है और ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पढ़ते हैं तो उसका साइकोलॉजिकल कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस आपके माइंड पर रहता है, जो मैं खुद इम्प्लीमेंट अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में किया हूँ कि उसको हमने बैकग्राउंड से कुछ न कुछ ड्रॉ किया है और फिर उस प्लेटफॉर्म पर मैंने फ्यूचर के लिए पढ़ाई की है. और एक दो हिस्ट्री बुक्स हम ग्रुप में डाल देंगे और सजेस्ट कर देंगे नाम भी, जिसको कि आप लोगों को पढ़ना है. सिर्फ एक ही पढ़ना है, कोई जो भी दो मैं सजेस्ट करूंगा, जिनमें से कोई एक हिस्ट्री बुक डेली पढ़ते रहिएगा. ठीक है? Am I audible? Yes sir. Yes sir. और दूसरी चीज है कि Yes sir. ये प्लेटफॉर्म है इंग्लिश अड्डा, उसमें मैंने लास्ट टाइम तो सारे टॉपिक्स कवर होंगे और सारे टॉपिक्स पर पीपीटीज मिलेंगी. हमारा सबसे सफल इस इंग्लिश अड्डा का सबसे शायद सफल कोर्स रहा है, क्रैश कोर्स रहा है और हायर का, जिसने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है. और उसमें लास्ट टाइम जो कुछ भी
कंप्लीट नहीं हुआ था, वॉट एवर वॉज लेफ्ट लास्ट टाइम, this time they will complete that thing also. It means it was a crash course. Complete course और crash course में difference होता है. In crash course sometimes we leave certain topics, but in complete course we are not supposed to leave any topic. हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक बुक पब्लिश करने जा रहे हैं जो कि करीब 22 या 25 पेपर सेट का होगा। रवि, Yes, कितने yes, पेपर्स होंगे? yes. 24. और how many papers? We are working on that. 24. We'll let you know. No, that is why I am referring that book here. Particularly, there is some objective कि हम उस बुक में करीब 24 क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूड कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन सारे यूनिट्स से। आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे, कम से कम उसका एक पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन रहेगा। और हमारे पास ऑलरेडी लास्ट टाइम में करीब 16 पेपर्स हायर एजुकेशन के रहे हैं, मतलब यूपीएचएससी से रिलेटेड रहे हैं, उसमें भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी और पेपर्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी टीचर यूनिट कवर करेगा और उस यूनिट के आधार पर आपको पीपीटी मिलेगी, पीपीटी के बाद आपको वो बुक देगी। जो भी कोर्स लेगा, जितने बच्चे हमारे यहाँ कोर्स लेंगे, हम उस बुक को उनको फ्री में उपलब्ध कराएंगे। We will not charge. It means English Adda will not charge anything for that book. हम लोग उसको फ्री में अवेलेबल कराएंगे। और हर मतलब 3 डायमेंशनल आपकी प्रिपरेशन हो रही है। पहला कि आपको उस पर लेक्चर मिल रहा है, दूसरा उस पर पीपीटी मिल रही है, और तीसरा उस पर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है विद एक्सप्लेनेशन बुक के साथ। ठीक है, सबको मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. हाँ, दूसरी चीज ये कि कुछ लोगों ने कहा कि हम जीएस के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीएस एक बहुत ही लेंदी पार्ट है इसका, लेकिन हमने ये देखा है पेपर्स में whenever we appeared in the examination of in such examination कि there are certain units that is always expected in GS part। कि जैसे मान लेते हैं कि एजुकेशन की हिस्ट्री से हो गया, करंट इकोनॉमिक्स जो अफेयर है उनसे हो गया, हिस्ट्री से हो गया। तो हम लोग इतने सारे टेस्ट सीरीज जो भी पेपर 24 हम आपको बता रहे हैं जो बुक में हम इंक्लूड करेंगे, उन 24 पेपर्स में भी हम जीएस के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबल है कि वो सारे जो एक्सप्लेनेशन या जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं के आसपास से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और that you can tackle with in a easy way। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी यूनिट, सारा टॉपिक पीपीटी के साथ और लेक्चर के साथ सब कुछ कवर होगा, कोई इशू नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज और मैं ये करना चाहता था, अगर कोई टीचर आपका क्लास मतलब ले रहा है किसी टॉपिक पर और आप सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन गिव अस फीडबैक इमीडिएटली आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो और जस्ट after attending that lecture. Our team will discuss on that particular issue and we shall try to give you the best teachers। ठीक है? और मतलब कोई भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन डिस्कस। हमने लास्ट टाइम इस कोर्स को बहुत ही मतलब जल्दी में लॉन्च किया था, फिर भी हमने कंप्लीट किया था किसी न किसी तरीके से। थोड़ा सा जल्दीबाजी थी क्योंकि समय बहुत कम था, लेकिन इस बार हमारे पास समय शायद है कम से कम 5 to 6 months का टाइम हमको, 5 to 6 months में हम। Okay, I think संतोष सर की आवाज़ थोड़ी सी कम ऑडिबल है। So students, let me tell you one thing, that we will begin with the most difficult part of this syllabus, that is linguistics, and also the literary theory. So because these two are the most difficult parts of this course, so we will begin with linguistics and literary theory, and we will then go on to the other units as well.
So it is very important, very significant that you take admission as early as possible, because if you delay taking admission, then there are chances that you will not be able to complete the course. Since the course is big and it is difficult for a person to complete this syllabus without proper guidance, then and because this job is very lucrative, once you become assistant professor, you have you have status in the society and you get enough earning by the blessings of God. So what you need to do is, you should not think about the fee. You must arrange the fee from somewhere if there is some difficulty, and take admission immediately so that you can crack this examination, right? And for making payment, you can give me a message on the number that I have already shared everywhere. You can simply send a message and I will let you know how to make the payment, and I will add you to the group where students, registered students, are already there. All right. Manju ma'am, are you Hello? there? Yeah. Who is it? Are you asking some question? Yes, sir. One question. Yes, is sir. there. Please. Sir, will you provide last year question paper last year? Yes, sir. Yes, we will provide last year question paper, and we will also help you solve that question paper. Not only last year, last to last year. We will provide 2 question papers, and we will solve those 2 question papers along with you in live class, so that you can understand what kind of question papers are questions are asked and how to handle them. Okay, sir. Thank you. Right? Yes, Any other question? Thanks. Manju ma'am, are you there? Yes, Ravi sir. Okay, Please tell me. dear students, Manju ma'am was one of yeah. Are you asking a question, somebody? Yes, I guess. सर एक प्रश्न है सर, थोड़ा Please. हिचक हो रही सर, आपको बुरा ना लगे। नहीं, बुरा नहीं लगेगा, पूछिए. Sir, I'm. सर एक्चुअली मेरे साथ के भी 1-2 लोग हैं सर, जो मतलब इंटरेस्टेड हैं. हाँ. तो ये हम सबका ही क्वेश्चन है, आप मान लीजिए सर. हाँ, कोई बात नहीं, आप पूछिए. उसमें भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं, आप सीधे पूछ सकते हैं. सब विचित्र है, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है. कोई बात नहीं, डरने कोई आवश्यकता नहीं. हम लोग सब पहले से ही आपस में भाई बहनों क्षमा की तरह प्रार्थी हैं. हूँ सर. पूछिए. सर ये आपके पोस्टर पर जो सुबह वाला हम लोगों ने देखा था ना, हम लोग सब ठीक ने है. साथ ही देखा था. ठीक है. तो उसमें कॉर्नर में लिखा था 13 लोग जो है उसमें हैं, हाँ, यूपीएससी हाँ. में हैं. हम्म, और सर हमने इंटरव्यू भी देखा था, 2 इंटरव्यू शायद आपने डाले हैं. तो सर इसमें हम पता लगाना चाहते थे कि सर किस टाइप की रैंकिंग है इनकी, क्योंकि अच्छा, रैंकिंग किस टाइप की, मैं बता देता जी हूँ. ऊपर की तरफ है कि नीचे की. बिल्कुल मैं बता देता हूँ. अभी आपको मैं रफली बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाया सबके पोस्टर्स बनाने का. तो वीरेंद्र कुमार जो हैं, जिनके 65 क्वेश्चन सही हैं, और उनका रैंकिंग शायद टॉप में ही होगी शुरू में ही. हर्षिता मिश्रा के 66 क्वेश्चन सही हैं. राइट. अगर आप चाहें तो मुझे फ़ोन करिएगा, मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में इन लोगों से बात भी करवा सकता हूँ. हर्षिता रमा मिश्रा हैं, उनके 65 क्वेश्चन सही हैं. ये सारे लोग हाई रैंक में हैं, और रमा की 8th रैंक है. रमा की 8th रैंक है. तो सारे ही ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंक काफ़ी हाई है, और कुछ की लो भी है. जैसे मैंने कहा, 5 लोग वेटिंग में भी हैं. तो जो वेटिंग वाले हैं, ऑब्वियसली उनकी लो रैंक है. तो रैंक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. सीमा की कौन सी रैंकिंग है? सीमा की मुझे याद नहीं सर, देखना पड़ेगा. गोरखपुर सर यूनिवर्सिटी. ये रमा मिश्रा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वाली है. हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वाली. अच्छा. अगर आप- तो इनको अगर आप- शायद नहीं Talk to जानते her. हैं. If you know her, you can talk to her. She will. Probably sir, probably not sure sir. और Not और sure. एक चीज और है. सर ये गोरखपुर से है रमा मैम. अगर आप हाँ, अगर हमारे रमा- किसी, जैसे हम किसी व्यक्ति का डालते हैं अपने एडवर्टीजमेंट में, आप उनसे बात करना चाहें तो हम आपके उनसे बात भी करा सकते हैं. जी. हाँ, ऐसा सर इनके डिपार्टमेंट में लिंक है हमारा रमा मिश्रा के डिपार्टमेंट में. Right. तो ये गोरखपुर वाली रमा मिश्रा है ना, क्योंकि वहाँ 2 रमा मिश्रा है. संतोष उसी सर. डिपार्टमेंट में सर 2 हैं रमा मिश्रा. नहीं, मैं ये मुझे पूछना पड़ेगा रमा से, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि वो इलाहाबाद में रहती ज्वाइन हैं. करने के बाद. रमा इलाहाबाद में रहती हैं. उनके हस्बैंड का संस्कृत में असिस्टेंट नहीं प्रोफेसर वो हुआ है. तो जहाँ तक मुझे पता है गोरखपुर की वो नहीं है.
but then I नहीं, don't वो know if गोरखपुर सर इनको हम लोग नहीं जानते। गोरखपुर की है। रवि 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 हाँ रवि जस्ट लेट मी शेयर वो सब कुछ गोरखपुर जानते हैं। की ही है। मुझे नहीं Actually, पता ना, वो- क्योंकि मैं उनका हाँ, रूट नहीं जानता गोरखपुर हूँ. की वो इलाहाबाद It is difficult वो for us to गोरखपुर की- remember. सर मेरे वो- मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, उनके मैं बात जूनियर है, वो करूँ- बता रहे थे, तो सर ने नाम लिया तो मुझे याद हाँ, एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेम्बर कौन कहाँ से है. राइट, बट वी रिमेम्बर द रवि नेम्स. मैं बोलूँ कुछ? प्लीज प्लीज. रवि मेरी आवाज जा रही है क्या? यस, यू तो आर. आपका नाम क्या है? जिसने क्वेश्चन पूछा आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? सर राजेश सर। राजेश ओके राजेश। राजेश एक्चुअली रमा ने जब कोर्स ज्वाइन किया था, शी वाज गुड स्टूडेंट। ओके, तो रमा ने कोर्स ज्वाइन करने के बाद एक स्टेटमेंट दिया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी इस तरह से नहीं पढ़ाया गया जहां जैसे यहाँ पढ़ाया गया। एंड शी did not know anything in a perfect form. After joining the course, she knew about each topic in a different way. Because of that she performed in a very drastic and great manner there. Okay. सर 66 क्वेश्चन बताए ना सर ने उनके, सही? जहाँ तक मुझे उनके याद है. 67 क्वेश्चन थे। 67 क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू। All right, guys. Any other questions? Thank you, Rajesh, for your inquiry. I'm very happy because what happens is that people don't ask questions and they just keep these questions in their mind and they make their own conclusions. It is very good that when that people come forward and they ask whatever the doubts they have. So thank you for that. Any other questions, guys? So if you have no further questions, Manju ma'am, are you there? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so dear aspirants, Manju Bhartola ma'am was one of our teachers for the last course. I would ask her to discuss something about the examination and strategy, and then after that we will conclude this session. Manju ma'am, please. First of all, I welcome all of you to English Adda. आप लोग इंग्लिश अड्डा से जुड़ करके देखेंगे कि किस तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन को एक दूसरे लेवल पे लेके जाते हैं। जब आप शुरू करते हैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तो बहुत डॉन्टिंग लगता है कि यही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। बहुत सारी एस्पिरेशंस हमारी जुड़ी होती हैं उस एग्ज़ाम के साथ में। बट जिस तरीके से हम आपको गाइड करेंगे, जैसे जैसे आप टॉपिक्स के साथ फेमिलियर होंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता चला जाएगा। मुझे याद है जब मैंने लास्ट टाइम कोर्स पढ़ाना शुरू किया था और मैं अपने एस्पिरेंट से बात करती थी तो बहुत कन्फ्यूजन उनको रहती थी। उनको लगता था कि टॉपिक जो कोर्स है वो इतना वास्ट है, मेमोराइज करना हर चीज़ मुश्किल है और कैसे वो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। बट आज देखिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छी टीम है जो कि आपको गाइड करेगी और हम आप लोगों को क्लास में बहुत फ्रीडम देते हैं कि आप कितनी भी बार आपको नहीं समझ में आ रहा है आप पूछें। पीपीटीज आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल करवाई जाएंगी और क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो जो है हमारी अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों से भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेंगी और हम लोग कोशिश करेंगे दैट ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द यू। हम सिर्फ करेंगे, वी विल मेक इट हैपन, वी विल ब्रिंग बेस्ट ऑफ यू कि आप खुद जाएंगे करके। So we are with you, don't worry, join us and we will help you navigate this examination and become excellent. Thank you so much. All right, dear students, thank you Manju ma'am. If nobody has any questions, we can consider it a closing. Yeah, शालिनी. सर मैं शालिनी। हाँ बोलो शालिनी. सर मुझे ये पूछना था कि मतलब 6 months बहुत ज्यादा नहीं है? तो पिछली बार तो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो गए थे। देखो एग्ज़ाम कब होंगे उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। 3 महीने भी हो सकता है और 1 साल में भी हो सकता है,
लेकिन हमें जो लग रहा है कि 5 to 6 मंथ्स तो लग जाने चाहिए, क्योंकि सारे फॉर्म्स को एक्सेप्ट करना, स्क्रूटनी करना, उसके बाद एडमिट कार्ड देना। और यूपीएचईएससी का आपको पता है कितने वहाँ पे स्टाफ हैं, हम लोगों को तो पूरा अंदर का पता है कि कौन कौन वहाँ पे स्टाफ है, कौन कौन क्या करता है, सारी जानकारी है। तो हमको उस हिसाब से पता है कि कौन कितना काम कर सकता है और कितने फॉर्म आने वाले हैं। तो उस अंदाजे से 6 महीने से कम तो लगना मुझे लगता है टफ है। 6 महीने तो लग ही जाएंगे, अगर तेज काम होगा तो 6 महीने। जी इतना तेज तो है नहीं, सारा ऑनलाइन तो है नहीं। ऑनलाइन आने के बाद वो लोग प्रिंट आउट लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं वो लोग। जी सर, Right. एक चीज और पूछनी थी। हाँ शालिनी, यूपीएचसीसी का कोर्स मैं ज्वाइन कर रही हूँ, अभी पीजीटी का भी डाला हुआ है, तो पीजीटी का अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा? पीजीटी का अलग है कोर्स, इसका अलग सिलेबस है। तो तुम ज्वाइन करना है तो अलग से करो, नहीं करना तो मत करो। नहीं वो तो है, पर मेरे पास एज यू नो कि आई डोंट हैव टाइम, यू नो माय सिचुएशन। हाँ आई अंडरस्टैंड दैट, बट फिर क्या करोगे, रात में देखना जब सब लोग सो जाएंगे तो वीडियोस। क्योंकि जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम वाले तो हो सकता है अपने आप से कर लें, बिना टाइम वालों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करना। मतलब अगर मैं ज्वाइन भी कर लेती हूँ तो फिर टाइम क्लैश नहीं करेगा? नहीं, क्लास नहीं करेगा, वो तो क्लियर है, क्लास वाला काम नहीं है। दोनों क्लासेस अलग अलग टाइम पे होंगी, इसका यूपीएचसीसी का अलग अलग चलेगा? अलग अलग चलेगा, दोनों का अलग है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। All right, thank you. Okay, guys, then thank you. Have a good evening, and yeah, Akansha. सर हाँ। आई हैव ए क्वेश्चन सर। Yes, Sonu. सर कल लिंग्विस्टिक पे क्लास होगी या क्रिटिसिज्म पे सर? That we will decide most likely in the morning, but either one of them, linguistics or criticism. ओके Fine, then we will meet tomorrow. And thank you. Have a good evening. And yes, please work hard, get this job, and make your families proud. Join English Adda or not, that's completely your choice. We will not force you. We cannot force you, of course. And but we expect you to get this job. Good luck and good night. Thank you, sir. थैंक यू गुड सर। नाइट मैम, गुड नाइट सर। Good night.